Good morning, student. Today we are going to start second part of chapter number first, the summer of the beautiful white horse. As you know, we have already completed part number 1 of this chapter in previous video. The remaining portion will continue in this part number 2 in this video also. We have already finished 3 paragraphs of this chapter. Today we are going to start fourth paragraph of the chapter. All the students will open the book of snapshot and read the chapter with me. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyard, orchard, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on the Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his moustache trimmed, to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Zorav, who was practical and nothing else, that's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to the some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousins said. "Get down, the horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with horse." "Well," I said, "any way you have with horse, I have also." "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." Let's explain the para. That year we lived at the edge of the town. उस साल हम लोग जो है टाउन के किनारे पर ही रहते थे. We lived at the edge of a town, कस्बे के किनारे पर, यानी कि आउटस्कर्ट कहलाता है. जो आप अलग से रहते हो,
जैसे कोई शहर है और शहर में जो बस्ती है, बस्ती के जब नई बस्ती बस्ती है चारों तरफ जब ग्रोथ होता है तो वो आउटस्कर्ट कहलाता है, उसका किनारा कहलाता है। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और वो कहाँ पर था, जहाँ पर वॉलनट एवेन्यू एक अखरोट के पास का जो बगीचा था वहाँ उसके पास हम लोग रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइनयार्ड, और बिहाइंड आवर हाउस और हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री वाइनयार्ड्स, और वहाँ पर अंगूर की जो वाइनयार्ड्स कहलाते हैं, यानी कि वाइन से मतलब तो आप जान रहे होंगे वाइनयार्ड्स, तो उसकी खेती होती थी वाइन बनने के लिए, यानी अंगूरों की खेती, ऑर्चर्ड और बहुत सारे फलों का बगीचा था, इरीगेशन डिचेस, बहुत सारी जगहों पर सिंचाई होती थी, एंड कंट्री रोड्स, और वहीं से ही गांव के और शहरों के जो रास्ते थे वहीं से गुजरते थे और निकलते थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और हम लोग 3 मिनट से कम में ही ऑलिव एवेन्यू, यानी कि जो ऑलिव जानते हैं ना, आप जानते होंगे आंवला, ऑलिव एवेन्यू, आंवले एवेन्यू से मतलब ये है कि वो स्थानों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं। ये बात 2 लड़कों की, एक आराम एक मुराद, ये स्टोरी बता रहे हैं अपने बचपन की, इनकी कम्युनिटी में, इनके कुनबे में या इनकी ट्राइब में, जिसको कबीला भी बोलते हैं। 1100 वर्षों से ये लोग जो है 11th सेंचुरी से अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। लेकिन जब मुराद जो है आराम के पास उसको जगाने के लिए सुबह सुबह आया, जब वो 9 वर्ष का था, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि एक तो हम लोग गरीब हैं और दूसरा इसके पास घोड़ा कहाँ से आ गया। तो उसको इस बात का यकीन नहीं हुआ, तो उसने ये मान लिया कि इसने शर्तियल ये घोड़ा चुराया होगा। लेकिन कहता है कि गर्गोरियन फैमिली में तो कोई चोर हो ही नहीं सकता। तो दोनों एक डिफरेंट बात हो रही थी। उसके आगे की ये स्टोरी है। तो 3 मिनट के अंदर जो ये लोग जो है ऑलिव एवेन्यू के पास पहुंच गए, एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट। उसके बाद घोड़े की जो लगाम थी वो खींच दिया, रोक दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब वहाँ पर जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम पर आप जान सकते हो कि जो एयर होती है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही लवली और बहुत ही ब्रीजी, जिसको बोलते हैं ना ठंडी और ताज़ी हवा। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। और घोड़े की सवारी करना ऐसे मौसम में बहुत ही शानदार एक नज़ारा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। माई कज़न मुराद हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर, और मेरा जो कज़न यानी कि चचेरा जो भाई था मुराद, उसको कंसीडर्ड किया जाता था, माना जाता था क्रेजीएस्ट मेंबर, सबसे पागल सदस्य माना जाता था ऑफ आवर फैमिली। हमारे परिवार का सबसे पागल सदस्य किसको माना जाता था? मुराद को माना जाता था। बिगिन टू सिंग, गाने लगता है। ही बिगिन टू रोल, इसका मतलब है गाने क्या लगता है? दहाड़ने लगता है, यानी फटे बांस की तरह चिल्लाने लगता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी हिस्ट्री। हर परिवार में कोई ना कोई एक पागल तो होता है। आप भी जानते हो आपके परिवार में कोई ना कोई एक पागल व्यक्ति तो होगा जिसको सब लोग कहते हैं यार ये पागल है। इट्स समवेयर एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी हिस्ट्री इन आवर ट्राइब। और हमारी जो कबीला था, हमारा जो कुनबा था, उस कुनबे में मुराद को जो है डिसेंडेंट यानी कि और भी जो लोग पागल रह चुके हैं उनका ही वंशज माना जाता था उसको, कि ये भी उसके जैसा है। और आपके घरों में भी अगर कोई पागलपंती करता है तो आप लोग भी जो है उसका कंपैरिजन कर देते हो, आप लोग उसकी तुलना करते हो कि तुम तो फलाने की तरह पागलपंती कर रहे हो। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुर्शो। इनसे पहले इनके अंकल, इनके चाचा हुआ करते थे जिसका नाम खुर्शोब था। और खुशरोब जो है एन इनॉर्मस मैन, एक बड़े व्यक्ति थे। एक उनका जो दिखावा था, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था, जो बाहरी संरचना थी, बहुत ही बड़े लंबे चौड़े। विद अ पावरफुल हेड, एक बड़ा सा सर था उनका, और ब्लैक हेयर, काले बाल, एंड द लार्जेस्ट माउस्टैची, और बड़ी बड़ी उनकी मूछ थी। इन द सैन जैकुलिन वैली, वो कहाँ रहते थे? सैन जैकुलिन वैली में रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते थे, बहुत ही ख़तरनाक थे। सो इरिटेबल, बड़ा परेशान करने वाले थे। सो इम्पेशियंट, बड़े बेसब्र थे, कोई धैर्य उनके अंदर नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और उनके इस अपीयरेंस से कोई भी दहाड़ता हुआ अगर आ भी रहा हो तो वो
अपनी एक बात कहकर उसे चुप करा दिया करते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई भी परेशान हो, दिक्कत में हो, तो दहाड़ता हुआ उनके पास आ रहा हो तो उससे कहते थे इट इज़ नो हार्म, अरे कुछ नुकसान नहीं हुआ, पे नो अटेंशन टू इट, अरे इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ। दैट वॉज ऑल, और यही सब था। नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में क्या बात करता है, क्या सोचता है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप। एक बार की बात है कि उनका खुद का बेटा अराक जो है दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा था। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेच ट्रिम, जहाँ पर उनके पिताजी जो है अपने मूँछों को ट्रिम करा रहे थे। माउस्टेच ट्रिम टू टेल हिम, उनको ये बताने के लिए देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि आपका या हमारा, हम लोग का जो घर है वो जल रहा है, आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर, तो ये व्यक्ति खुशरो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, उठ जाता है। एंड रोड, और चिल्लाने और चीखने लगता है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ और इस पर कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, वो जो नाई था, वो जो बार्बर था, बट द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस, लेकिन लड़के ने कहा कि तुम्हारा घर नुकसान हो रहा है, तुम्हारे घर में आग लगी, तुम्हारे खुद के घर में इज़ ऑन फायर, आग लग गई है। सो खुशरो रोड इनफ, खुशरो फिर दहाड़ने लगे, कहते हैं बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा भाई मुराद भी इन्हीं का वंशज माना जाता है। एक अंकल थे कई पीढ़ियों पहले, उनका ही वंशज किसे माना जाता है, मुराद को माना जाता है। आल्दो मुराद फादर वाज ज़ोराब, जबकि मुराद के पिता का नाम ज़ोराब है। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बहुत प्रैक्टिकली मैन है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सही से करने वाले मैन हैं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही हमारा कुनवा है, यही हमारा कबीला है, यही हमारी जाति है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने बच्चे के गोश्त का पिता तो हो सकता है, फ्लैश यानी जो मांस हमारे चढ़ा हुआ है हाड़ पे, यानी हाड़ बोलते हैं बोन्स को, हमारे शरीर पे जो हड्डियों पे जो मांस चढ़ा हुआ है फ्लैश बोलते हैं उसको। तो एक पिता अपने बच्चे के फ्लैश का फादर तो हो सकता है, बट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसकी आत्मा का, उसकी रूह का, उसकी स्पिरिट का भी मालिक हो जाए या फादर हो जाए, वो सिर्फ उसके शरीर का मालिक होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, लेकिन हमारे कबीले में, हमारे कुनबे में अलग अलग प्रकार की आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आराम कह रहा है अपने बड़े होकर, जब वो लिखता है इस स्टोरी को, कहता है लेकिन हमारे कबीले में अलग अलग आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, जो अलग अलग प्रकार से अपना रूप दिखाते हैं। एट लास्ट वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, आखिरकार हम लोग जो है सवारी करते रहे और हमारा कज़न जो है मुराद गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, लेकिन सब जानते हैं हम लोग अभी भी जो है पुराना जो हमारा गांव था, स्टिल ओल्ड कंट्री, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स, जहाँ पर कम से कम हमारे अभी पड़ोसी थे जो हम लोग को पहचान सकते थे कि हम लोग घोड़े पर घूम रहे हैं, तो वो हैरान हो जाते कि ये लोग घोड़े पर कैसे घूम रहे हैं। बिकॉज वी आर पुअर, क्योंकि हम क्या हैं, गरीब हैं। वी हैव नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। देन हाउ वी रोड ऑन द हॉर्स, तो फिर हम कैसे घोड़े पर घूमे, तो ये क्वेश्चन तो बनता है। वी बिलोंग्ड, तो हम जिस एरिया से बिलोंग करते थे उस एरिया में अभी भी जो है उस एरिया के पास ही थे हम लोग, और सब लोग हम लोग को पहचान सकते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग इट फेल लाइक रनिंग, और हम लोग तब तक उस घोड़े को दौड़ाते रहे, जब तक दौड़ाते रहे जब तक कि वो घोड़ा जो है दौड़ता रहा और इन्जॉय करता रहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, आखिरकार अंत में मेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा, गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन, नीचे उतर आओ और मैं जो है अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा अच्छा तुम अकेले सवारी करना चाहते हो, तो फिर
बाद में मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? मैंने उससे पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड। मेरे भाई ने कहा, अरे अपना काम करो, गेट डाउन, पहले नीचे उतरो, फिर बाद में बताऊंगा क्या करना है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा कि घोड़े की सवारी मुझे करने देना, तभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। वी शैल सी, ही सेड। उसने कहा हाँ देखेंगे, उतरो पहले नीचे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स। ये मत भूलो कि मुझे अभी घोड़े के साथ बहुत काम करना है और वापस भी रखना है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें घोड़े के साथ कुछ काम है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। फॉर द शेक ऑफ द सेफ्टी, और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तुम्हारा, फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वह बोला, कि तुम नीचे अभी उतर जाओ, नहीं तो फिर तुम सुरक्षित नहीं रहोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखो कि तुमने मुझसे वादा किया है, लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. मैं नीचे उतर आया और मेरे भाई मुराद ने अपने पैरों को किक मारा। किक काय में मारा? घोड़े पे। मेरे भाई मुराद ने घोड़े पर अपने पैरों से किक मारा और किक मारने के बाद चिल्लाया। आप देखते होंगे घोड़े चलाने वाले किस तरह से किक मार के और चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं। वज़ीरे रन, भागो वज़ीरे। उस घोड़े का नाम क्या रखा उसने? वज़ीरे। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंग लेग्स। घोड़ा अभी भी अपने पीछे के पैरों में उठ जाता है, हिनहिनाता है। स्नॉर्टेड एंड बस्ट इनटू द फरी ऑफ स्पीड। हिनहिनाता है और फिर पैर रखकर और बहुत तेज़ भागने लगता है। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था जो मैंने इससे पहले कभी देखा था। My cousin Murad raised the horse across a field of day grass to an irrigation dish. और मेरा भाई मुराद दौड़ाता हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। ग्रास इरिगेशन डिश क्रॉस द डिश ऑन द हॉर्स। जितने भी पानी लगाने वाले जो एरिया तक खेत थे उनको पार करता है। एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैक। और 5 मिनट बाद गीले घोड़े के साथ वापस आता। द सन वॉज कमिंग अप। सूरज भी निकल आया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब मेरी बारी है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने उससे कहा कि अब तो मेरी बारी आ गई है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर आया। राइड, ही सेड। उसने कहा हाँ चढ़ जाओ। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव। और मैं घोड़े के ऊपर चढ़ गया। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स। घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई न्यू, और कुछ ही पल में मुझे पता चल गया, द मोस्ट ऑफुल फियर, एक बहुत ही डर, एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर, इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नॉट मूव, एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर प्रवेश कर गया। क्या डर? कि घोड़ा तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़िन मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि उसकी मसल पर थोड़ा सा किक मारो। किक इनटू हिज मसल, माय कज़िन मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने कहा कि उसकी मसल पर किक मार दीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड अप एंड अबाउट। हमें पूरे संसार के उठने से पहले ही इस घोड़े को वापस भी करना है। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? इस किक मारिए और जल्दी से उठाइए। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स। मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे भाई ने मुझे ऑर्डर दिया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। फिर से उसने अपने आगे के पैरों को उठाया और स्नॉटेड यानी कि हिनहिनाने लगा।
देन इट बिगिन टू रन, और उसके बाद दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, लेकिन मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, चलाना कैसे है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरिगेशन फील्ड की तरफ जाने के बजाय डिच द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइनर। किस तरफ जाने लगा? इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, उस खेतों में जाने की बजाय टू द इरिगेशन डिच, जो कि सिंचाई वाले जो खेत थे, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड ऑफ द वाइनयार्ड, जो अंगूर के जो बाग थे, जो खेती थी, उसकी तरफ भागने लगा। ऑफ दिकरान हालाबियन, किस तरफ? दिकरान हालाबियन की तरफ। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर द वाइन, और उन लताओं के ऊपर से अंगूर और जो भी लताएं थी वहाँ पे, वाइनयार्ड्स जो भी थे, वहाँ के ऊपर से गुजरता गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, 7 वाइन्स यार्ड को उसने कुचल दिया। बिफोर आई फेल, उससे पहले मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो चिल्लाता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम गिर जाओ कुछ भी हो जाए। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, लेकिन हमें उस घोड़े को वापस पाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ मैं उस तरफ जाता हूँ। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, मैं इस तरफ जाता हूँ तुम उस तरफ जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और यदि वो तुम्हें मिल जाए तो आराम से उसको पकड़ लेना, मैं पास में ही हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं रोड की तरफ देखता रहा और मेरा भाई मुराद जो है खेतों की तरफ देखता रहा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, मुराद को लगभग आधा घंटा लग गया उसे ढूंढने में, और वो वापस लाता है उसको। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, उसके ऊपर वो चढ़ जाता और कहता ठीक है कोई बात नहीं। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार जाग चुका होगा। वाट विल डू आई सेड, और अब जो है घोड़े को वापस रखेंगे तो पकड़ जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि अब हम लोग क्या करें? वेल ही सेड वी विल एदर टेक हिम बैक टू हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा कि हम लोग को कम से कम कल सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब हम लोग घोड़े को वापस रख पाएंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई नो ही हैड हाइड हिम, उसके बताने में कोई चिंता नहीं लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ जो है वो मुझसे छिपा रहा है। एंड नॉट टेक हिम बैक, कि वो घोड़े को वापस रखना नहीं जा रहा है। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और ना ही जो है वो कुछ इसके बारे में बोल रहा है। वेयर विल हाइड हिम आई सेड, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हम लोग घोड़ा कहाँ छिपाएंगे? तो वो जवाब देता आई नो अ प्लेस ही सेड, उसने बताया कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर हम लोग घोड़े को छिपा सकते हैं। दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। द रिमेनिंग पोर्शन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट नंबर 3. I hope you have not any problem. If you have any problem, comment in the comment box. Thank you.